welcome back to the Loyan. This is Chetan Walukar here. So our email ID is chetanwalukar@gmail.com and our Telegram channel is at the Loyan. So please join our Telegram channel for more updates. So let's get going for the topic of the day. So in this series right now we are studying Hindu joint family system, wherein we are done with the schools of Hindu law. Then we are done with the co-parsonary. What is co-parsonary? Who is co-parsonary? Then we are done with the karta, his power, his position. And in the previous lecture, we have seen property and its types. So from today onwards, we'll be seeing partition. So before that, there is one announcement या फिर disclaimer. जिन जिन लोगों ने अभी तक schools of Hindu law नहीं देखे, please go through it. And then we know under the property there are two types of property under Mitakshara and one type under the Daya Bhaga. So we are done with the joint family property under Mitakshara, separate property under Mitakshara, and then obstructed and separate property under Daya Bhaga. So we are done with it. So जिन जिन लोगों ने ये नहीं देखा है, please watch it, because unless and until you understand the properties under Mitakshara and Daya Bhaga, there will be some difficulty in understanding the partition. Okay, so please must watch the property video first. So let's get going. Partition. So we know the two schools of Hindu law. So it is very much necessary and basic approach to understand partition in two ways. First is under Mitakshara and second is under Daya Bhaga. It is very much compulsory and necessary to see or to understand these things in this particular format. So today's lecture, that is part 1 under the partition, will be dealing with the partition under Mitakshara. Okay, so partition, in a very legal term, we can say the true test of the partition of a property is the intention of the members of the family to become the separate owner. इसका अर्थ क्या है, या फिर what do you mean by true test? What is the importance of intention and how a co-parsonary becomes a separate owner? ये समझना is the partition. चल अगर partition समझना है तो we just have to remember 3 I's. Okay, so it is the 3I strategy to understand what is partition, in which first I is intention to be a separate owner. ये क्या है डिटेल में हम बाद में देखेंगे. Then second I is intimation to others who are getting affected by this particular intention, and the third one is indication of defined share. Okay, so अभी डिटेल में देखेंगे ये 3I strategy to understand partition क्या है. ठीक है, so first I is intention to be a separate owner. This is the most important condition for the partition. So what is it? What is the intention or how it works? So according to Mayuka, partition is a particular state of mind of a person. Hence mere intention to separate constitute the partition. इसका मतलब ये है कि if a person thinks inside that he want to be a separate owner, और उसको ऐसे लगता है कि अभी पार्टीशन होना चाहिए और मुझे मेरा शेयर मिलना चाहिए, as soon as a person thinks of it, the partition takes place. Okay, so why it is a state of mind? Okay, तो why it is state of mind ये हमें बाद में जब हम थर्ड कंडीशन देखेंगे तब पता चलेगा. ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन इज देयर शुड बी एन इंटेंशन फ्रॉम अ फैमिली मेंबर टू बी अ सेपरेट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. ठीक है, देन सेकेंड आई इज इंटीमेशन टू अदर्स हु आर गेटिंग अफेक्टेड. दिस इज द नेसेसरी कंडीशन 1. पहले जो इंटेंशन की कंडीशन थी दैट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन. अभी ये कंडीशन नंबर 1 है दैट वंस अ पर्सन थिंक्स कि उसको प्रॉपर्टी में पार्टीशन चाहिए, इट इज नेसेसरी कंडीशन नंबर 1 दैट ही शुड इंटीमेट ऑल अदर्स हु आर गेटिंग अफेक्टेड बाय सच पार्टीशन. सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी of the person who want to be a separate owner. So once the intention is intimated, it is the responsibility of that particular person to tell others that he want to be a separate owner. So when he tells others कि नहीं भाई मुझे separate होना है, okay, so when this particular intimation is given, it is absolutely immaterial whether the other persons or other family members agree to the separation or not. Okay, because as soon as one person thinks or one person intends to be a separate owner,
it has no value or the opinion of the other person does not matter. ओके, सो इट इज एब्सोल्युटली इममटेरियल, वो एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो हमारे केस में या फिर हमारे एग्जांपल में क्या है, हम साथ साथ एक एग्जांपल ले रहे हैं. अगर चार में से एक भी बच्चे को लगता है कि हमें पार्टीशन करना है या फिर मुझे सेपरेट प्रॉपर्टी चाहिए, तो नो अदर पर्सन, नो अदर सन्स ऑफ बाबूजी और डॉटर ऑफ बाबूजी कैन से नो. इवन दो दे से नो, उन्होंने नो भी कहा, then it doesn't matter, it is absolutely immaterial. Okay, because as soon as the intention is declared, partition is happened in mind. Okay, so that is the second I. The third I is indication of a defined property. So first, and this is the second necessary condition for the partition. तो सिर्फ ऐसे नहीं हो सकता कि मैंने इंटेंशन डिक्लेयर कर दिया और मैंने सबको इंटीमेट कर दिया कि ओके पार्टीशन होने वाला है. नो, ये दो कंडीशन तो इंपॉर्टेंट या नेसेसरी तो है, लेकिन सेकंड नेसेसरी कंडीशन ये भी है कि हमें सबको बताना पड़ेगा या फिर बोलना पड़ेगा कि व्हाट डिफाइंड शेयर और व्हाट पर्टिकुलर शेयर दे विल बी गेटिंग एंड दे विल बी एब्सोल्युटली एंजॉयिंग राइट ओवर दैट पर्टिकुलर शेयर. ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि सिर्फ पार्टीशन करना है ये इंटेंशन डिक्लेयर करके नहीं होगा, बट सब लोग साथ में बैठ के it has to be indicated कि what clear and definite share of one person will receive and at what context he can enjoy that particular share of the property. ठीक है, so ये तीन I important है. So after understanding 3I, it is very much clear या फिर a very basic definition of a partition can be कि a person wants to get separated, he wants to be a separate owner of the family. So when he declares कि मुझे separate property चाहिए, तो partition takes place in a mind, और वो जो joint family का status होता है that stop existing. ठीक है, so it is the intentional severance or separation of a co-parcenary property by the members of a family so as to become a separate owner. जो अभी co-parcenary है वो अभी separate owner बनेगा so that he can enjoy his share in the family property in a absolute manner or absolute severity. So what happens after indicating these three I? ये तीन I बताने के बाद या फिर three I अप्रोच फॉलो करने के बाद क्या होगा या फिर पार्टीशन कैसे टेक प्लेस करेगा. सो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट में पहला है व्हाट हैपन्स आफ्टर फुलफिलिंग 3 I's. सो फर्स्ट थिंग इज इट रिड्यूसेस अ कोपार्सनरी इनटू अ टेनेंट इन कॉमन. इसका मतलब ये है कि अभी तक जो भी मेंबर्स कोपार्सनरी है, एग्जांपल से समझते हैं कि बाबूजी के प्रॉपर्टी में अभी 5 लोग कोपार्सनरी है. हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी में देखा है कौन कौन. बाबूजी खुद प्रॉपर्टी में कोपार्सनर है, देन उनके बड़े बेटे, फिर सलमान खान, उनकी बेटी एंड सैफ अली खान. दीज आर द 5 कोपार्सनर. सो एज सुन एज पार्टीशन टेक्स प्लेस, अभी ये 5 लोग कोपार्सनरी न रह के वो अभी सिंगल यूनिट में टेनेंट बन जाएंगे. ठीक है, सो पार्टीशन रिड्यूसेस अ कोपार्सनरी इनटू अ टेनेंट इन कॉमन. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट टेक्स प्लेस. सेकेंड इफेक्ट क्या होता है, तो एन इमीडिएट सेवरेंस ऑफ द जॉइंट स्टेटस इज अफेक्टेड. इसका अर्थ ये है कि हम लोगों ने देखा कर्ता एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम ने हमने देखा कि देयर इज अ मेन फैमिली एंड देयर इज अ ब्रांच फैमिली अंडर द मेन फैमिली. सो एज सुन एज पार्टीशन टेक्स प्लेस, ये जो ब्रांच फैमिली है दैट विल कन्वर्ट इनटू, दैट वोंट बी अ ब्रांच फैमिली एनीमोर. ठीक है, सो ये ब्रांच फैमिली विल कन्वर्ट इनटू अ सेपरेट फैमिली और अ न्यूक्लियर फैमिली. सो इसका यह अर्थ ये है जॉइंट फैमिली का जो स्टेटस है दैट विल सीवर एंड अ न्यूक्लियर एंड इंडिविजुअल फैमिली विल बी क्रिएटेड. नेक्स्ट इफेक्ट क्या है इसका, it is not necessary that there should be an actual division of property by metes and bounds. ठीक है, तो पार्टीशन के डेफिनेशन में हमने देखा कि as soon as intention is declared a partition takes place in mind. मायू खान ने ये डेफिनेशन दी है. ठीक है, so partition takes place in mind, hence it is not necessary कि actual division of property takes place. इसका मतलब ये है कि अगर एक बाबूजी का बंगला है तो
तो इसमें से आधा पार्ट इसको, आधा पार्ट इसको, ऐसा एक्चुअल डिवीजन होना नेसेसरी नहीं है बाय मीट्स एंड बाउंड्स, ठीक है। सो इट इज ओनली अ कंस्ट्रक्शन कि सब लोगों को पता चल जाता है कि अभी पार्टीशन हो चुका है, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट इफेक्ट? Next effect is it creates rights and interest of each members even without actual physical separation of property. हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि physical separation of the property does not take place, but अभी every member को they will get their rights and interest on a particular share of the property. एक particular share में अभी जो भी member है उनको अपना अपना share मिलेगा। इसके वजह से उन लोगों का एक एब्सोल्यूट राइट उन पर्टिकुलर चीजों पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? अल्टरेशन और चेंज इन द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि एक्चुअल डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी डज नॉट टेक प्लेस। एक्चुअली ऐसे प्रॉपर्टी में चेंजेस नहीं होते, बट प्रॉपर्टी के जो पेपर होते हैं, ठीक है, इसमें उस बंदे का नाम ऐड हो जाता है या फिर डिलीट हो जाता है, ठीक है। सो देयर इज अल्टरेशन और चेंज इन द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। तो टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी क्या है? अभी देखिए, अगर खेती बाड़ी होगी तो उसका 7/12 एब्स्ट्रैक्ट आता है, ठीक है। वो एब्स्ट्रैक्ट पे अगर अभी बाबूजी का नाम है तो उसके ऊपर 10 एकड़ का प्रॉपर्टी लिखा हुआ है या फिर 10 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड लिखी हुई है, तो दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 5 को-पार्टनर्स। दैट मीन्स अभी बाबूजी के नाम के आगे 2 एकर्स आएंगे, देन बड़े बेटे के सामने 2 एकर्स, लाइकवाइज 5 लोगों के सामने 2 एकर्स विल बी देयर। सो दैट इज द चेंज इन द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। सो देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस कि बेस्ड अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच फैमिली कि पार्टीशन होना किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता है या फिर किन चीजों में पार्टीशन नहीं होता है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि सेपरेट फूड, अलग किचन होना या फिर अलग वर्शिप का प्लेस होना डज नॉट अमाउंट टू पार्टीशन। देन सेपरेट एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की ये कार सिर्फ एक्स यूज कर रहा है या फिर कार सलमान खान ही यूज कर रहे हैं, तो दैट अमाउंट्स टू पार्टीशन क्या? नो, दैट्स नॉट अ पार्टीशन। एंड द थर्ड वंस, separate income and expenditure and transactions. Every person, if they are doing separate income, they are achieving some separate income and expending some money, and these transactions are happening in between them, that doesn't amount to partition. Okay, so what property can be partitioned? So of course we have seen it, which property can be partitioned. There is no problem to partition a unobstructed property, hence ओनली एंसेस्ट्रल और अनऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी कैन बी पार्टीशन। इसका एग्जांपल क्या है? हम लोगों ने प्रॉपर्टी में देख लिया है, सेपरेट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी क्लेम्ड अंडर पार्टीशन एंड ऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी आल्सो कैन नॉट बी क्लेम्ड अंडर द पार्टीशन। तो सेपरेट प्रॉपर्टी क्या है, ऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी क्या है, अनऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी की वीडियो में प्लीज जाके देख लीजिए, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड इट। ओके, नाउ विच प्रॉपर्टी कैन नॉट बी पार्टीशनड, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि अनऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी कैन बी पार्टीशन, तो इसमें क्या आएगा? सेपरेट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी पार्टीशन, ऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी कैन नॉट बी पार्टीशन। देन द थर्ड वन इज इम्पार्टिएबल प्रॉपर्टी दैट कैन नॉट बी पार्टीशन। अभी इम्पार्टिएबल प्रॉपर्टी क्या है समझते हैं। सपोज बाबूजी के फैमिली में एक रिचुअल है या फिर एक कस्टम है कि उनके घर की एक पर्टिकुलर जो तिजोरी है वो सिर्फ बड़े बेटे को ही मिलेगी, ठीक है। ये रिचुअल है या फिर कस्टम है उनके फैमिली का। सो उनकी घर की जो भी तिजोरी है वो सिर्फ बड़े बेटे को ही मिलेगी, तो उस पर्टिकुलर तिजोरी का पार्टीशन नहीं हो सकता बिकॉज इट इज इम्पार्टिबल प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर फैमिली, ठीक है। देन नेक्स्ट इज इनडिविजिबल प्रॉपर्टी। इसमें क्या क्या आता है? जो भी चीजें डिवाइड नहीं हो सकती, फॉर एग्जांपल फर्नीचर ऑफ द फैमिली या फिर जो लाइव स्टॉक है, अगर खेती बाड़ी का काम हो तो लाइव स्टॉक है, उसमें काउज आती है ना, बफेलोज आती है, तो ये सब कैन नॉट बी डिवाइडेड, ठीक है, और दैट कैन नॉट बी पार्टीशन। देन फैमिली आइडल्स एंड टेम्पल्स, फैमिली की जो भी आइडल्स एंड टेम्पल्स है
वो डिवाइड नहीं कर सकती। अगर 5 आइडल्स है तो एक आप रख लो, एक आप रख लो, एक आप, ऐसे नहीं होता, ठीक है। एट मोस्ट देयर कैन बी अ रोटेशन सिस्टम, कि ये 5 आइडल्स एक साल के लिए बड़े बेटे के घर पे रहेंगे, दूसरे साल में छोटे बेटे के घर पे जाएंगे, तीसरे साल में लड़की के घर में जाएंगे, और चौथे साल में छोटे बेटे के घर पे जाएंगे, ठीक है। एट मैक्स देयर कैन बी अ रोटेशन, बट देयर कैन नॉट बी सेपरेशन और पार्टीशन ऑफ आइडल्स एंड टेम्पल्स ऑफ द फैमिली, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज, जो भी कॉमन वाटर है या फिर वेल्स है, ठीक है, जहां से पानी लोग डेली यूज के लिए यूज करते हैं फैमिली मेंबर्स, वो डिवाइड नहीं हो सकते। दैट इज द कॉमन प्रॉपर्टी और द कॉमन राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, ठीक है। या फिर खेती पे जाने का जो रास्ता है या पे घर पे आने का जो रास्ता है, दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड और पार्टीशन, ठीक है। सो दैट ऑलवेज रिमेन्स अ कॉमन राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, ठीक है गाइज। सो दैट्स इट फॉर टुडे। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑन द पार्टीशन. We'll come up with the next part soon. Thank you so much. See you soon. Stay happy.